یہ کشمیر ہر سال کی طرح اس سال 7واں اپنا کسان میلہ کسان اینڈ سیڈ میلہ منا رہی ہے۔ یہ 6 اور 7 مارچ کو منعقد ہو رہا ہے کسان میلہ، اور یہ ایک پلیٹ فارم ہماری یونیورسٹی نے بنایا ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ ہمارے سارے اسٹیک ہولڈر، جن میں ہمارے سائنسدان حضرات، جن میں ہمارے ٹیکنوکریٹس، جس میں ہمارے ایکسٹینشن ایجنسیز، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، الائن ڈپارٹمنٹس، فارمرس، انوویٹو فارمرس اور گورنمنٹ کے آفیشلز اس کسان میلہ میں حصہ لیتے ہیں۔ اور اس میلے میں جو اس میلے کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میلے میں اپنی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کا ہم یہاں پہ پردرشن کرتے ہیں اس میلے میں۔ اور اس سال جو ایک اسپیشل فوکس ہے اس کسان میلے کا، وہ ہے آرگینک ایگریکلچر، کیونکہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہی ہوگا کہ دیش میں بھی یہ ایک رجحان ہے، ایک نیا چلن ہے، اور آنریبل پرائم منسٹر اور آنریبل فنانس منسٹر آف انڈیا نے بھی اپنے فنانس بجٹ میں نیچرل فارمنگ پہ زور دیا۔ تو ہماری یونیورسٹی نے پہلے سے ہی اس کسان میلے کا تھیم رکھا تھا آرگینک فارمنگ۔ تو اس آرگینک فارمنگ کے سلسلے میں اگر ہم نے کشمیر کو بہتر بنانا ہے، یہاں کے ماحولیات کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں کی زمین کو ٹھیک رکھنا ہے، اور یہاں کی انسانی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے، اور جانوروں کی صحت کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، تو یہ جو ایک نیشنل چلا ہے ہمارا مشن کہ ہمیں نیچرل اور آرگینک فارمنگ کی طرف جانا ہے، تو ہماری یونیورسٹی نے پہلے ہی اس پہ کچھ اقدام اٹھانے شروع کیے تھے۔ تو اس میلے میں ہم یونیورسٹی کی وہ ٹیکنالوجیز کا پردرشن کریں گے، ان کا یہاں پہ اس میلے میں دکھائیں گے جو ٹیکنالوجی اس آرگینک فارمنگ کو آگے لے جانے میں بہت زبردست سہایتا اور کارگر ثابت ہوگی۔ اور ساتھ میں وہ فارمر، وہ کسان بھائی جو ابھی ہمارے اس یو ٹی جموں کشمیر میں آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ آرگینک ان پٹ بنا رہے ہیں جو ٹیکنالوجی جو ہم نے ان کو دی ہے، یا وہ آرگینک پروڈکٹ بنا رہے ہیں، چاہے سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، پھل ہیں، تو وہ بھی اس میں رہیں گے۔ اور ساتھ میں ہم ان کمپنیز کو بھی یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں جو آرگینک ان پٹ یہاں کشمیر میں بھیج رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا جو اس میں ایک خاص بات ہوگی کہ ہمارا جو ڈائریکٹریٹ آف ایکسٹینشن ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ ہم اپنے اس ایگریکلچر کو کس طرح سے ٹرانسفر، وہ جو ایک سبسسٹنس ایگریکلچر ہوا کرتا تھا ہمارے کنٹری میں یا اس یو ٹی جموں کشمیر میں، اس کو ہم کس طرح سے سسٹینیبلی کمرشل کریں۔ تو اس کے لیے ایک بڑی ہماری ایک کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو اور ہمارے جو کسان بھائی، ہم ان کو کیسے یہ سمجھائیں گے کہ اس کو ٹرانسفارم کرنے میں نئی ٹیکنالوجیز کا کیسے استعمال کریں گے۔ اور وہ فارمر جو اس میں کامیاب ہوئے ہیں، ہم نے ان کو نام دے رکھا ہے چمپئن فارمرز۔ تو اس کسان میلے میں وہ جو کم سے کم 20-25 چمپئن فارمر یہاں پہ ہوں گے، اور وہ اپنے اس کارکردگی کے بارے میں بھی خود یہاں پہ ڈسپلے کریں گے کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی کے سائنسدان اور جو ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں، وہ اپنی انوویٹو ٹیکنالوجیز کا اس میں پردرشن کریں گے۔ جو خاص ٹیکنالوجیز جو ہم یہاں پہ ڈپکٹ کریں گے ہم اس کسان میلے میں، میں تھوڑا سا ذکر کروں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں یا جو لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو اس بارے میں پتہ چلے کہ ایگریکلچر اب ایک نیا رجحان ہے۔ اب پرانا ایگریکلچر شاید کم ہے، اب اس میں ٹیکنیک کا نئے طریقے اس میں آئے ہیں، جس میں آپ جو خاص کر ہارٹیکلچر جو ہماری اس معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اس میں ہائی ٹیک ہارٹیکلچر کیسے کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ کیش کراپس ہیں، ویجیٹیبل کلٹیویشن، تو اس میں وہ ہوتا ہے آج کل پروٹیکٹڈ کلٹیویشن میں۔ تو ہائی ٹیک پروٹیکٹڈ کلٹیویشن کیسے ہوتا ہے۔ ایک اور ہے کہ ہماری زمین سکڑتی جا رہی ہے، زمین کم پڑ رہی ہے، تو ایک اور طریقہ آیا ہے ہائیڈروپونکس ہے، ایروپونکس اور ورٹیکل گارڈننگ، تو اس کا بھی کچھ ڈیمانسٹریشنز یہاں پہ ہوگا۔ اور ایک فوڈ پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن جو آج کل سیکنڈری ایگریکلچر میں جس کا بڑا زبردست عمل دخل ہوگا، اس کا بھی یہاں پہ ہوگا۔ اور ایپیکلچر آپ نے سنا ہی ہوگا، ایپیکلچر جو بہت ہی ضروری ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم شہد کی پیداوار اس سے کرتے ہیں، لیکن ایپیکلچر اس لیے ضروری ہے کہ فوڈ پروڈکشن میں یا خاص کر ہارٹیکلچر پروڈکشن میں ایپیکلچر کا شہد کی مکھی کا بڑا زبردست عمل دخل ہے، اس کا بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ اور بایو ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہم بولیں گے ایگرو بایو ٹیکنالوجی۔ تو ایگری بایو ٹیکنالوجی کا ایک بڑا زبردست آنے والے سالوں میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کی اکانومی اور معیشت کو ٹرانسفارم کرنے میں۔ اس معیشت کو ہم کہتے ہیں آج کل بایو اکانومی، تو ہم اس میں وہ ٹیکنالوجیز بھی یہاں پہ رکھیں گے۔ اور ایک اور ہے ہمارا جو سیڈ اور پلانٹ مٹیریل، ہماری یونیورسٹی کا بڑا زبردست کنٹریبیوشن ہے سیڈ اور پلانٹ مٹیریل میں۔ ہم اس سال قریب 40,000 ہمارا پلانٹنگ مٹیریل ہوگا کشمیر میں،
जो हम हमारी यूनिवर्सिटी का जो हम डेवलप करेंगे, इस तरह की सीड की वो नई वैराइटीज़ जो हमने डेवलप करी है और उनको भी हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फ़िश फार्मिंग भी इसी तरह जो नई तरीके हैं फ़िश फार्मिंग के, वो भी हम इसमें इंशाल्लाह रखेंगे यहाँ पे। और इस तरह से एक फार्मर साइंटिस्ट मीट भी हम एक करेंगे इसमें। और कुछ इसमें एक और ख़ास बात है हमारी यूनिवर्सिटी का इस मेले में, अब हम अपने बच्चों का रुझान कुछ स्टार्टअप्स की तरफ ले रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले रहे हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी तक बच्चों के 4 स्टार्टअप हम उनको प्रमोट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उनमें से एक स्टार्टअप हम लॉन्च भी करने जा रहे हैं कल। तो इस मेले में उन 4 स्टार्टअप्स वो भी अपना वहाँ पे दिखाएंगे इस मेले में, क्योंकि आने वाले ज़माने में हमने अपने बच्चों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अब जो ये पढ़ाई के साथ में उनको इस तरह से अपने आप को सोच को बदलना है, इनोवेटिव तरीके से उनको बदलना, अपनी कॉन्फिडेंस स्किल और हुनर को इस तरह से बढ़ाना है कि वो सरकारी नौकरियों के पीछे कम और ख़ुद वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि वो उनके लिए जॉब क्रिएशन करेंगे। और एक और ख़ास बात है कि जो बैट इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ कश्मीर में, उनके लिए एक बड़ी ज़रूरत होती है कि वो ख़ास किस्म का पेड़ जो विलो है, बैट विलो, वो उनके पास मुहैया नहीं है। तो हमारी एक फैकल्टी है फॉरेस्ट्री बेनिहाम में, इस मेले में हम वो जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो जो बैट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो वो विलो कल्टिवेट करते हैं, तो उनके लिए हमने करीब 3000 इस तरह के पेड़ रखे हैं जो हम उनको फ्री में यहाँ पे उनको तकसीम करेंगे। उनमें वो नई किस्म का एक ख़ास किस्म का विलो है जिससे जो बैट बनता है तो वो उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है। तो ये मैं मुख्तसरन इस बारे में बताया। तो मेरे साथ हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब भी हैं, तो ये भी आपको बताएंगे कि हमारा इस किसान मेले। डीसी साहब, पहले तो ये जानना चाहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से के हवाले से आपने बात की, ऑर्गेनिक मेला लगाता है यहाँ पे अपनी मंडी में, यहाँ स्वास्थ्य की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि क्योंकि इन है ये और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह हो मार्केट में। बिल्कुल आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट जो 1-2 साल से बड़ा जोर दिया है कि हमने कश्मीर को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना है। हम ऑल ऑफ अ सडन अचानक हम ऑर्गेनिक नहीं बनेंगे, लेकिन उसको करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले से ही एक हमारी एक रिसर्च विंग है यहाँ पे जो ऑर्गेनिक इनपुट्स को जो मसनूई खाद है या जो एग्रो केमिकल्स, अगर हमने उनको रिप्लेस करना तो उसको रिप्लेस करने के लिए उनको उसके बजाय हमारे पास कुछ नई इनपुट होने चाहिए। तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने करीब 12 ऐसी टेक्नोलॉजी 12 ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हम यहाँ पे इस मेले में दिखाएंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे। और हमने एक बुकलेट भी बनाई है, टेक्नोलॉजी हमने बनाई। अब हम जो कश्मीर में जो लोग इसमें एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, हम उनको बताएंगे कि इसमें स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्सटेंशन विंग है अपने किसानों को जो इस बात की तरफ वो पिछले कई सालों से राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसान भी इस बात की यहाँ पे आपने वो जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो इनपुट्स वो इसमें एक बात खास बताना चाहता हूँ कि इस मेले में हम इस बात पे जोर देंगे कि कश्मीर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। जैसे हमारा अखरोट है, हम अखरोट को आज भी मार्केट में अखरोट के नाम से बेचते हैं, लेकिन हम अपने अखरोट को, वालनट को ऑर्गेनिक अखरोट आज तक हमने उसको नहीं कहा है। काला ज़ीरा है जैसे वो भी ऑर्गेनिक है नेचुरली। शहद है जो हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं कश्मीर में, शहद नॉर्मली एक बंदा जो यहाँ पे शहद प्रोड्यूस करता है, जो फार्मर है, वो 300, 400, 500 रुपये में शहद बेचता है 1 किलो के हिसाब से। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम उस शहद को कोशिश करेंगे उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाई करवा के उसकी शहद की पैदावार की कीमत कम से कम 1000 से 1500 तक 1 किलो का हो सकता है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा एक किसान है वहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वो अब इस हद तक आ गए कि वो यूँ कह रहा है कि मैं अपने एप्पल पे कम से कम जो दवाइयाँ और एग्रो केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल करके उनको किसी तरह से, अगर हम पूरा 100% ऑर्गेनिक नहीं करेंगे, लेकिन उसका रेजिड्यू लेवल इतना कम करेंगे कि उसके उस जो प्राइसेस में या जो उसका जो रिटर्न उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा होगा। जैसे नॉर्मल एक आम सी एक ग्रेड सेब की जो बॉक्स है वो हम जब हम मार्केट में ले जाते हैं तो 800 से 1000 रुपये में उसका मार्केट में मंडी में उसका कीमत है, लेकिन हमारा जो फार्मर है वो 1800 से 2000 में अपनी पेटी बेचता है।
तो एक शुरुआत है। इस तरह से गुरेज हमारा एक एरिया है जिसको हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके गुरेज और टंगदार जैसे कुछ ऐसे एरिया जिनको हम ऑर्गेनिक ही डिक्लेयर करेंगे ताकि वहाँ पे खाद और ये जो मसनूई खादें हैं और ये जो केमिकल है वहाँ न जाए। लेकिन इसके साथ हमने लाइन डिपार्टमेंट के साथ में गवर्नमेंट के साथ में मिलके वो हम कर सकते हैं। So regarding this certification, that is vital for this organic to be promoted in market. Exactly. So what can be done by the university? हाँ, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कुछ स्टेप उठाए हैं। कुछ सर्टिफाइंग जो लेबॉरेटरीज एजेंसीज हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी इस्टेब्लिश करी है और हमारे यहाँ पे एक अच्छी लेबॉरेटरी है जो NABL एक्रेडिटेड लेबॉरेटरी है जिसका नाम है RCRQA रेजिड्यू क्वालिटी एनालिसिस लेबॉरेटरी, जिसमें हमारी यहाँ पे ये क्षमता है, अहलियत है कि हम उन प्रोडक्ट्स में ये देखें कि उनमें रेजिड्यू एनालिसिस कितना है। लेकिन फ़िलहाल हमें हमारी यूनिवर्सिटी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का अभी नहीं मिला है एक्रेडिटेशन, लेकिन गवर्नमेंट में 2 ऐसी लेबॉरेटरीज हैं जहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया जो सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त में क्लियर है कि हमने आगे बढ़ना है और हमें ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे कश्मीर में लानी है जो उन प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करेंगे। तो हम आने वाले कुछ समय में एक पूरा एक लाहे अमल गवर्नमेंट के साथ मुरतब करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए सर्टिफाई करने के लिए क्या ज़रूरियत है उनकी। सर जो मेला है, मेला कब शुरू हो जाएगा और कब तक? हाँ जी, मेला हमारा 6 और 7 तारीख को 2 दिन का हमारा ये मेला होगा। 6 संडे आता है और 2 दिन रहेगा हर तरह उनको भी आप हाँ, हमने जो हमारा प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पिछले करीब 2 हफ्तों से लोगों तक जा रहे हैं और उनसे और हम एक ख़ास बात है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो वहीं से हमें बता रहे हैं कि हम ये इस साल मेला कब करने जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से और आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ पे आए और आप भी आपकी वसात से भी ये जो मैसेज हमारी है आम लोगों तक पहुँच जाएगी कि 6 और 7 तारीख को हमारे मेले यूनिवर्सिटी जो है हर साल ऐसे प्यार और मोहब्बत के मेले जो है एग्रीकल्चर के मेले हैं जो हर किसी का मेला है, हर एक फर्द का, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसान हो या आम शहरी हो, उनके लिए मेला होता रहता है। लेकिन इस साल जो हमारा 7वां मेला, जैसे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने अभी आपको मुतल्लक किया, उन्होंने बताया कि ये जो आज का मेला है इसमें ट्रस्ट नेशन वाइड जो है ऑर्गेनिक के ऊपर। ऑर्गेनिक क्यों? सवाल ये ऑर्गेनिक है। एक दौर था जब हम कह रहे थे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी, उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र्स, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल भेजा होता था। और अब जबकि ये देखा गया है कि उससे हमारा एनवायरनमेंट भी, हमारी सेहत भी, हमारी ज़मीन भी आलूदा होती है, उस आलूदगी को रोकने के लिए और हमारी सेहत की तरफ ख़ास तवज्जो देने के लिए इस वक्त जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी फरमाया जो मुल्क भर का यही नारा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर चलें। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई काविशें की गई हैं और अभी भी जोर चालू है। आप देखेंगे जो हमारा सीड टेक्नोलॉजी मेला हो जाता है इसकी शुरुआत ही हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्टॉल से हुई और कम बेश हमें इसमें 14 से ज़ायद स्टॉल्स हैं जो सिर्फ हमारी सेल, परचेज़ और जो डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, दिखाएंगे लोगों को आया हमारे पास क्या क्या ऑर्गेनिक का पोटेंशियल है, हमारी रियासत में क्या पोटेंशियल है, कौन सी जगह किस फसल की पोटेंशियल है, वो हम लोगों तक उजागर करेंगे। ऑर्गेनिक के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में, ये एक ही बाग में नहीं जहाँ पे हमारी हनी बीस आए और वो फूलों को चूस लें। इनफैक्ट जो हमारे कुपवारा में, जो हमारे अनंतनाग में, जंगली इलाकों में जो बी हाइव्स रखे गए हैं, जंगली वहाँ जो जंगल से जो हमारा हनी आता है वो ऑर्गेनिक है। और उसके लिए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ने कई सक्सेस स्टोरी मुरतब करी है। एक सक्सेस स्टोरी ये है कि जो कुपवारा एरिया से आपका हनी आता है वो कुपवारा से बॉम्बे जाता है 900 रुपये किलो, जबकि हमारे आम मार्केट में उस शहर का नाम है जो 200 से 250 रुपये किलो जाता है। उसकी पैकेजिंग यूनिवर्सिटी ने उनको दिखाई, उनकी पैकिंग यूनिवर्सिटी ने उनको दिखाई और वो जो बॉम्बे में चला जाता है 900 रुपये किलो और वही सेलर वो जो परचेज़ करता है वो वहाँ 1800 रुपये में वो पर केजी बेचता है कश्मीरी ऑर्गेनिक के नाम से।
Sir, regarding this below, is that we have this variant that can produce best wax now because we have developed that. I was doing a story on this that they told me that initially we used to make also Wimbledon rackets for Wimbledon. Rackets for tennis. So they said that initially we were building hockeys as well as for mulberry and this. For that they used this ash because its availability had gone down. But this wood is now actually more prized wood as it is used for this dashboards of luxury cars like Mercedes. You have this. Can there be some revival of this? This is specialized agriculture, specialty agriculture की तरफ। और इस तरह हमारा इस वक्त रुझान भी है स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की तरफ। इस स्पेशलिटी एग्रीकल्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये विलोज की या बैडमिंटन के रैकेट्स की या ये क्वालिटी बैट्स की ये खुशहाली कदम है कि हमारी जो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है उनको एक ये मिली सर्टिफिकेशन मिली है कि वो इस बैट की जो है उनकी सर्टिफिकेशन मिली है। तो बड़ी खुशआइन बात है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। इसी तरह जो आप रैकेट्स की बात कर रहे हैं और ये भूसे की इस्तेमाल करने के बाद ये टेक्नोलॉजी है और जो हमारे एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहेंगे यूनिवर्सिटी उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि जो स्ट्राइक ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो हमारा रूरल यूथ है जो इस वक्त एग्रीकल्चर से भाग रहे हैं उनको एग्रीकल्चर की ऐसी स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की तरह रागिब करने के लिए हमारे पास डायरेक्टरेट एक्सटेंशन में यूनिवर्सिटी में कई एक प्रोग्राम मुरतब किए गए और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम ऐसे प्रोग्राम कायम करने की शुरू करने की सलाह है। जहाँ तक ये क्रिकेट बैट का ताल्लुक है, हमारे कश्मीर में जो क्रिकेट बैट विलो है वो हर एक विलो, यहाँ विलो 29 स्पीसीज़ हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये विलो किसी भी विलो से बनाते हैं। तो हमारे बात की थी उससे ना वो फीमेल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसका हमारे पास मेल है। हाँ नहीं मेल हमारे पास मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को पता नहीं है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो उसी सिलसिले में हमारा एक इंडस्ट्रीज़ का एक प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। तो हमने पूरी वैली में सर्वे करके बेस्ट क्लोन्स जमा किए हैं। तो हमने वो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट में रेज़ किए और इंशाल्लाह हमारे वीस साहब उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो बैट इंडस्ट्री वाले हैं हम 2-3 हज़ार प्लांट फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। वो सबसे इलाइट और बेस्ट क्लोन्स हैं, प्योर फीमेल जो है विलो का जो मतलब क्रिकेट बैट में यूज़ होता है। आपने इंटरनेट पे देखा होगा देयर इज़ ए मिस नंबर देयर कश्मीरी विलो इज़ इन्फीरियर टू इंग्लिश विलो, आपने वो पढ़ा होगा। तो हमने जो यहाँ से ये जर्मप्लाज्म कलेक्ट किया उन ट्रीज़ का हमने जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, सब एनालाइज किए और कंपेयर किए इंग्लिश विलो के साथ। और हमारा विलो जो है बिल्कुल कंपेरेबल है विद इंग्लिश विलो। तो वो मिस नॉमर है नेट पे कि कश्मीरी विलो इज इनफीरियर। That we will not give any information to you as you are one of the stiff competitors to ours. That is it. Because they know उनको ये पता है कि कश्मीर में जो विलो है वो उसमें जानते थे कि यही कंपेटिटर है। ये तो बात आया है जिसके साथ आपका कंपटीशन जो आपको पोटेंशियल थ्रेट को ज़ाहिर है आप उनकी तारीफ करेंगे नहीं। अगर आप तारीफ करने से काशिफ है तो और इस विलो से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप ब्रांडेड बैट बना सकते हैं। Sir, back to this organic, the topic is mostly organic. We have certain areas within the city that are predominantly were organic, like we had this art cultivation in Charido, so one month we had organic. That was possible that input was used time with human excreta was lower. Even the Maharaja said to have a child or park or so so revive karnı argo o imaj areas imaj jungle ya weekend to budget gurias budget trava kuş kuş never weekend was MDF and medium density fiber boards one dim type karan factory with this say na like ni bu kya hai jo formaldehyde asan problem है अचानक गाल ऑर्गेनिक दम दो आज बह टोटल इन तुम वन मे चक्कर सैटिस त्रोन कुछ चीज या आज आज तक आए हमारे कुछ ऐसे पेस्टिसाइड ऐसे पैरासाइट्स हैं ऐसे जो अभी सिर्फ और सिर्फ किसी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से है ना पेस्टिसाइड से बचे
जब तक कि हमारे पास एक लाइन अमल अल्टरनेटिव होगा जिससे हम पेस्टिसाइड को मार सकें। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की है जिनसे हमने काफ़ी सारे पेस्ट को कंट्रोल किया हुआ मुकाम है, एक अच्छा फील्ड है कि हम इसको फर्दर कम धीरे धीरे कर देंगे ताकि हमारे जो फूड आइटम्स है वगैरह प्रोड्यूस है उसके जो रेजिड्यूज कम हो जाएगा, उनका पोटेंशियल लेवल कम हो जाएगा, तो जाहिर है वी विल बी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें प्रॉफिट वाइज करना पड़ेगा। लेकिन 100% असल में ये है कि एक तो ये है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट्स को 100% रेजिड्यू फ्री करें और इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा ये है कि हमने इसका जो इस्तेमाल इतना कम करके जिससे माहौल को कम नुकसान हो, ज़मीन हमारी ज़्यादा ख़राब बाज न हो, जो बायोडाइवर्सिटी है जो लॉस है सॉइल में जो बायोडाइवर्सिटी उसको नुकसान और हमारी हद तक कम असर। पहला ये है फोकस कि इसका काम हमें इसका इस्तेमाल हमें धीरे धीरे कम करना है। जैसे मैंने कहा एक मिसाल वाला जो हमारा फार्मर है उसने जब अपने प्रोडक्ट का एप्पल का जो एनालिसिस करवाया कहीं सिंगापुर से, तो उसमें रेजिड्यू 70% कम आया, 100% कम नहीं था, इट वॉज 70% लेस है इन रेजिड्यू एनालिसिस। तो 70% पे उसका जो प्राइस है वो these chemical fertilizers and all of these chemicals overnight, but then certain areas are there in our UP or Jammu Kashmir and Ladakh where we can working with the government declare those as organic pockets। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम आज जैसे आप सब्जियां हम आजकल सब्जियों की काश्त करते हैं, हम खाद जो डालते थे तो आजकल वर्मी कंपोस्ट आपने देखा ही होगा कि कश्मीर में बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और डिमांड भी बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे कश्मीर में वर्मी कंपोस्ट की खपत बहुत ज़्यादा है, बाहर की रियासतों से बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे इंपोर्ट पर है वर्मी कंपोस्ट जो एक ऑर्गेनिक किस्म की खाद है। इसका मतलब है कि लोगों में अभी रुझान और एक सोच आ रही है माइक्रोब होंगे, ऐसे कोई बैक्टीरिया उसमें होगी जो उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे उस खाद में, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड वर्मी कंपोस्ट। तो हम इस मेले में एक बुकलेट यहाँ पे इजारा कर रहे हैं जिसमें उन सारी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र होगा जो हमारे यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स को हम वो स्टार्टअप के तौर से ले सकते हैं। Thank you, sir.